Good morning, students. So today we are going to start our next topic. Actually, today we will discuss the precautions of income method. So in our previous lecture, we have already discussed about the income method, how to calculate national income by the income method. So in this, we saw there are three components to calculate the national income by the income method, and that was that. Yes, this is the chapter number 4. Chapter 4, measurement of national income. So students, in the income method, you know that there are three components. There are three components. Three components to calculate the national income. First is compensation of employees. Compensation of employees. COE. And second is operating surplus. Operating surplus. And third is mixed income. And we discussed all these components in our previous lecture, mixed income. Okay, so जब इन तीनों कंपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या आएगा? तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आता है? दिस इज इक्वल टू NDP at factor cost, and this is our domestic income. Okay, and the national income NNP. How to calculate the national income by the domestic income? So plus net factor income from abroad, plus net factor income from abroad in the domestic income, and is equal to NNP at factor cost, and this is our national income. National income. Okay, students. So now, first of all, we will discuss the precautions of income method. Precautions of income method. So the precautions are to be considered. Some of the precautions are there. First precaution is transfer incomes. Transfer incomes. Okay, like scholarship, donation, charity, old age pension, okay. So these are not included in the national income. Okay, हम इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे इस तरह की किसी भी ट्रांसफर इनकम को, बिकॉज सच रिसीप्ट्स आर नॉट कनेक्टेड with any productive activity and there is no value addition. क्योंकि किसी भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कोई इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी भी तरीके का आपका कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि जो आपके स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है, ये सिर्फ आपकी वन साइडेड पेमेंट होती हैं,
इसके बदले में किसी भी तरह की आप सर्विसेज की उम्मीद नहीं रखती, तो ये वन साइडेड पेमेंट होती है। तो जब जहां पर जो आपके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से कनेक्टेड नहीं होती हैं या जिसकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन ना हो, तो वो हमारी कभी भी ऐड नहीं होती नेशनल इनकम में। सो ट्रांसफर इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे। सेकंड इज income from sales of income from sale sale of second hand goods will not be included. Income from sale of second hand good will not be included. इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द नेशनल इनकम एज देयर ओरिजिनल सेल हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड। ठीक है, ऑलरेडी बीन काउंटेड, क्योंकि ये जो है ना आपके पास सेकंड हैंड गुड है, ये जब फर्स्ट टाइम जब ये क्या की गई थी, जब ये बनी थी और फर्स्ट टाइम इनको सेल किया गया था, तो इनसे जो इनकम आई थी वो ऑलरेडी आपके नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है। तो अगर ये सेकंड हैंड गुड की से जो भी कोई आपको इनकम मिलती है वो आप दोबारा ऐड नहीं करोगे। if they are included again, so it would lead to double counting. Okay, so however any brokerage or commission received by brokers or commission agent on sale of such good will be included as it is an income received for rendering productive services. ओके, ये आपने पीछे वाले हमारे उसमें भी हमने किया था आपके प्रोडक्ट मेथड में कि आपके पास बच्चे अगर कोई भी क्या है, जितने भी मान लो आपके कमीशन एजेंट होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं जो इस तरह के जो सेकंड हैंड गुड को की सेल परचेज को का काम करवाते हैं, यानी इंटरमीडिएटर के रूप में काम करते हैं, तो उनको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन क्या होगा, वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। ओके, नाउ द थर्ड इज income from sale of share, income from sale of shares, bonds and debentures will not be included. Okay, will not be included. As such transaction do not contribute to current flow of goods and services, क्योंकि इस तरह की ट्रांजेक्शन जो हैं वो किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज के का जो करंट फ्लो चलता है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, इसीलिए कोई भी शेयर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की सेल परचेज से जो इनकम मिलती है वो हम ऐड नहीं करते। एंड दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मियर पेपर क्लेम्स एंड इन्वॉल्व्स आ चेंज ऑफ टाइटल ओनली। ओके, बट एनी कमीशन और ब्रोकेज ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स, इस तरह की फाइनेंशियल एसेट्स पर कोई भी कमीशन या ब्रोकेज होती हैं इज इंक्लूडेड एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस, उनको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो हम उनके प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए होते हैं। ओके, so always avoid capital gains students, always avoid capital gains, mind it, always avoid, keep in your mind students, always avoid capital gain, इनको आपने हमेशा अवॉइड करना है जो कैपिटल गेन्स होती है। तो कैपिटल गेन्स रेफर्स टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड, जैसे आपकी क्या होगी, ओल्ड कार हो गई, एंड जो फाइनेंशियल एसेट्स बोर्ड्स डिवेंचर्स, so any income arising from such transaction is not a factor income as these transactions are not productive transactions and do not add to the current flow of goods and services in the economy. Okay, now the fourth is windfall gains. Windfall gains like income from lotteries, income from lotteries, horse race. Okay, so these are not included as there is no productive activity connected with them. Okay, now the fifth is imputed values
imputed value of services provided by owners of production units will be included. इनको ऐड करेंगे. Okay, because imputed value of owner occupied houses, interest on own capital, production for self consumption, etc. will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services. Okay, तो इस तरह की imputed values को हम लोग ऐड करते हैं नेशनल इनकम. उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग. पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग like death duty, gift tax, interest tax, etc. are not included in the national income because they are paid out of wealth or past saving and do not add to current flow of goods and services. क्योंकि आपने ये देखना होता है कि जो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है या आपकी वैल्यू एडिशन कर रही है या जैसे आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, आपकी करंट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें अगर किसी तरीके का एडिशन हो रहा है तो वो आपकी नेशनल इनकम में ऐड होगी, अदरवाइज ऐड नहीं होगी. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी टेक एन एग्जांपल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. So the example is, yes, given the data and using income method, हम using income method को यूज करेंगे और हमने कैलकुलेट क्या करना है. एक तो हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इज नेट डोमेस्टिक इनकम. नेट डोमेस्टिक इनकम. ओके, सेकंड इज ग्रोस डोमेस्टिक इनकम. ग्रोस डोमेस्टिक इनकम. Okay, and third is net national income. Third is net national income. And fourth is net national product at market price. ये चार चीजें आपने निकालनी है. आपके पास आइटम्स क्या क्या गिवन है देखिए. आइटम्स फर्स्ट इज indirect tax. Second is subsidies. Third is depreciation. Fourth is mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed. Fifth is operating surplus. Operating surplus. Sixth is net factor income from abroad. Net factor income from abroad. And seventh is compensation of employees. Compensation of employees. Okay, and the item values are rupees in crore. Rupees in crore. This is 9,000. Then 1,800.
1700, 28,000, 10,000, minus 300 and 24,000. Okay. So first of all, we calculate the net domestic income. Yes. First is net domestic income. Yes. How to calculate? So you know that. First of all, we add the three components. First is compensation of employees, second operating surplus, and third mixed income. So this is the compensation of employees, operating surplus and mixed income. तीनों आपको given है तो आप तीनों को add कर लो. Okay, compensation of employees. मैं यहाँ पर अभी शॉर्टकट में लिख देती हूँ. Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Okay, and the values are 24,000 plus operating surplus 10,000 plus mixed income 28,000. Okay, so now we will get rupees 62,000 crores. Okay, so this is our net domestic income, any NDP at a factor cost. Okay, now the next part is we will calculate gross domestic income. Gross domestic income. तो ग्रोस डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास नेट डोमेस्टिक इनकम निकला है, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम. ओके, ये हमने जो निकाला है इसमें हमने बस नेट से ग्रोस बनाना है. उसके लिए नेट से ग्रोस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे. यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. डेप्रिसिएशन, so 62,000, डेप्रिसिएशन इज 1,700. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होगा डेप्रिसिएशन minus 1,700. Okay, so this is now we will get sorry, हमने नेट से ग्रोस बनाना है ना. नेट से ग्रोस के लिए तो ऐड होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोस से नेट बनाना होता है तो हम माइनस करते हैं. नेट से ग्रोस बनाना है तो ऐड करेंगे. सो ऐड करेंगे ये 62,000 प्लस 1,700. सो ये होगा 63,700 रुपीज इन करोड़. Okay, now the third part is we will calculate net national income. Net national income. So net national income, how to calculate this? So net domestic income. Net domestic income. This is NDP at factor cost ना. Net domestic income. तो डोमेस्टिक है तो उसका सिर्फ हमने नेशनल बनाना है. नेशनल के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रोड ऐड होता है हमारा. सो ये हमारे गिवन है नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रोड. ये हमने प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फॉर्म अब्रोड. ओके, सो नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 and net factor income from abroad, this is minus 300. So minus 300. ओके, ये माइनस हो जाएंगे एक तरीके से हमारे. तो ये होगा आपके पास रुपीज 61,700 crore. ओके, एंड द फोर्थ पार्ट इज we will calculate net national product at market price. Net national product at market price. एक तरीके से आपका ये क्या निकालना है, NNP एट मार्केट प्राइस निकालना है. ये आपने यहाँ पर ये हमने क्या निकाला, नेट नेशनल इनकम. ये हमारी निकली थी NNP एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, बस आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, NNP एट मार्केट प्राइस में. अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं.
और अगर हमें अब क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो यहाँ पर, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो हमारे पास ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट, इसमें देखिए ऊपर क्या क्या गिवन है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और सब्सिडीज गिवन है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं और सब्सिडीज प्लस करते हैं। अब हमने क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में करना है, तो इसका उल्टा कर दो, अब सब्सिडीज माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दो। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, सो ये हमारे पास कितना आया था, 61,700 प्लस नेट इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने गिवन है, 9,000, सब्सिडीज 1,800, तो ये होगा 9,000 minus 1,800. Okay, so now we will get rupees 68,900 crore. Okay, students. Now, students, we taken another example. So the information is available for an economy. Okay, so on the basis of this information, using income method, calculate. First हमने calculate करना है, second में domestic income, and second is national income. National income. National income. Okay, so the items are given. Items. First is wages. Second, rent. Third, interest. Fourth, dividend. Fifth, mixed income. Sixth is undistributed profit. Undistributed profit. Okay, and the seventh is social security contribution. Social security contribution. Eighth is corporate profit tax. Corporate profit tax. Ninth, net factor income from abroad. Net factor income from abroad. Okay, and the values are given, rupees in crore. This is 10,000, 5,000, 400, 3,000, 400, 200, 400, again 400, and 1,000. Okay. So now, student, first of all, we calculate the domestic income. Domestic income. This is NDP at factor cost. Okay. So you know that first we will take compensation of employees. So compensation of employees, अब आप इसमें देखिए कि compensation of employees आपको given है या नहीं है। आपको गिवन नहीं है तो आपने क्या देखना है, आप कंपनसेशन के अंदर जो भी वैल्यूज, जो भी आइटम्स थी आपकी,
वो कौन कौन सी थी? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके, तो आपने उनमें से देखना है क्या क्या गिवन है आपके पास, वो हम लेंगे। एक तो हमें वेजेस गिवन है, ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या है गिवन है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी गिवन है हमें। तो ये दो चीजें हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में से गिवन है, तो ये हमने ले लेनी है। ओके, सो वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दो ले ली। अब नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन, देन we add the add its sub parts, that is rent. This is rent, interest, rent, interest and profit ना, so profit is not given. So अब हमने प्रॉफिट के अंदर के पार्ट देखने हैं। प्रॉफिट में अंदर कौन कौन से पार्ट थे? डिविडेंड था आपका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे आपके, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स थे। तो ये तीनों आपने ले लेने हैं किसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस में। सो प्लस होगा आपका रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ओके, और थर्ड कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम, सो मिक्स्ड इनकम इज गिवन, सो प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, इन सब के वैल्यू को ऐड कर लें। 10,000 प्लस 400 प्लस 5,000 प्लस 400, ओके, प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 400 और प्लस 400 मिक्स्ड। ओके, तो इन सबको आपने ऐड करना है सबको। तो ऐड करने के बाद आपके पास यू विल गेट ₹19,800 crore. This is our domestic income. Now the next part is national income. D part is national income. How to calculate this? So the national income NNP at a factor cost. Okay. So domestic income. ठीक है, this is NDP at factor cost. इसको हमने सिर्फ क्या करना है? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। सो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हमें गिवन है 1,000। ओके, सो 19,800 प्लस 1,000 and you will get ₹20,800 crore. This is our national income. So by this process, we calculate the national income by income method. Okay, students? So that's all for today. Have a good day.